Hey everyone, welcome back to Code Alpha. My name is Swati and in episode 1 we covered the basic HR interview questions. In episode 2 we moved to behavioral question with real life examples. Okay, and now in episode 3 we are entering the next level, advanced and situational HR interview questions. Okay, so these are the questions where HR does not just test your experience, they test your maturity, they test your decision making, they test how you think in difficult situation. यहीं पे सिलेक्शन आपका डिसाइड होता है. ओके, सो मैनी कैंडिडेट लूज कॉन्फिडेंस इन दिस राउंड बिकॉज दीज क्वेश्चंस डोंट हैव फिक्स्ड आंसर. You cannot memorize them, you have to think. So in this video I will explain 7 HR questions in detail. For each one I will give you a practical example and also explain the mindset behind the all answer. Okay, so listen carefully because here your tone, your logic and your maturity matter more than your English. So let's begin with the first question is, what would you do if you disagreed with your manager? This question checks professionalism. HR wants to know, are you ego driven or are you solution driven? In real life disagreements happens everywhere. Manager भी human है, आप भी human हो. Difference in opinion is normal, but how you handle it defines your professionalism. Now imagine this situation. Your manager gives you a strategy to follow, okay, and you believe there is a better approach. आपको लगता है कि इससे भी better approach मेरे पास है. Then आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए? आप वहाँ पे इमोशनली आर्ग्यूमेंट करोगे, आप उनसे कहोगे या आप अपनी टीममेट से नेगेटिवली डिस्कशन करोगे. तो ये जो है ये रॉन्ग अप्रोच होता है. नाउ लेट मी टेल यू द करेक्ट अप्रोच. करेक्ट अप्रोच क्या होता है? फर्स्ट, लिसन केयरफुली, अंडरस्टैंड देयर रीजनिंग. सेकेंड, रिक्वेस्ट अ शॉर्ट डिस्कशन, एक्सप्लेन योर व्यू पॉइंट रेस्पेक्टफुली एंड यूज डेटा, लॉजिक और एग्जाम्पल्स. आप उनको एग्जाम्पल्स के साथ समझाओ. थर्ड, सजेस्ट एन अल्टरनेटिव नॉट अ कंप्लेंट. एंड फाइनली, इफ द मैनेजर स्टिल चूजेस देयर वे, सपोर्ट द फाइनल डिसीजन प्रोफेशनली. ओके, आपको उसका डिसीजन प्रोफेशनली सपोर्ट करना है. लाइक मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, आप वहाँ पे ये बोल सकते हो. एक आप बोल सकते हो, इन माई इंटर्नशिप आई वॉन्स डिसएग्रीड विथ माई मैनेजर अबाउट अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इमीडिएटली आई रिक्वेस्टेड अ डिस्कशन. आई प्रेजेंटेड डेटा शोइंग अनदर approach might increase engagement. We discussed both ideas calmly and in the end we combined both strategies. This company performed better than expected. This answer shows maturity. HR wants to see you can disagree but you remain respectful. Okay, now since we spoke about disagreement with seniors, let's move to a situation where the challenge is not above you but beside you. Okay, that is, how would you handle a non-performing teammates? This question tests leadership and emotional intelligence. आप टीम में काम कर रहे हो, ओके, और एक टीममेट का परफॉर्मेंस वीक है, डेडलाइन इम्पैक्ट हो रहा है. व्हाट विल यू डू? रॉन्ग अप्रोच. आप यहाँ पे मुझे लगता है आप क्या करोगे, तो आप रॉन्ग अप्रोच करोगे. कंप्लेन इमीडिएटली आप कंप्लेन करोगे, ब्लेम पब्लिकली और इग्नोर द प्रॉब्लम, या आप प्रॉब्लम को इग्नोर करोगे. तो मैं आपको एक करेक्ट अप्रोच बता दे रही हूँ कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए. फर्स्ट, अंडरस्टैंड द रीजन को समझो कि रीजन क्या है. मे बी दे आर ओवरलोडेड, मे बी दे डोंट अंडरस्टैंड द टास्क. ओके, आपको रीजन को समझना है. एंड सेकेंड, टॉक प्राइवेटली, नेवर एम्बैरेस समवन पब्लिकली. एंड थर्ड, ऑफर सपोर्ट, सजेस्ट बेटर टास्क डिवीजन. ओके, एंड जो आपका लास्ट है, इफ परफॉर्मेंस स्टिल डज नॉट इम्प्रूव देन एस्केलेट प्रोफेशनली. आपको वहाँ पे सारी चीज़ें हैंडल करके चलनी है. ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बता देती हूँ. आप वहाँ पे ये बोल सकते हो, during a group project one teammate was missing deadlines. Instead of complaining, I spoke with him privately. I learned he was struggling with part of the task and I helped simplify the work structure and divided tasks better. Our coordination improved and the project was completed on time. HR learns something important here. You solve problems and you don't create drama. Okay, now let's move to something slightly different. Sometimes the challenge is not people, sometimes the challenge is the task itself. Let's see.
That is what if you are given a task outside your comfort zone. This question checks adaptability. Many candidates freeze here. Company को adaptable candidate चाहिए, not someone who says this is not my job. Okay. Imagine your manager assigns you a task in a technology you have never used. आप यहाँ पे क्या आंसर करोगे? क्या आप ये करोगे? I don't know how to do this. आपको ये नहीं करना. आपको बेटर आंसर कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट, एक्सेप्ट पॉजिटिवली. सेकेंड, रिसर्च एंड लर्न. थर्ड, आस्क फॉर गाइडेंस इफ रिक्वायर्ड. एंड फोर्थ, डिलीवर योर बेस्ट. अब मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ कि आपको इसको कैसे बोलना है. आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो, ठीक है. तो ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप आई वॉज असाइंड अ डेटा एनालिसिस टास्क यूजिंग अ टूल आई हैड नेवर यूज्ड बिफोर. I spent time learning through tutorials. I also asked a colleague for basic guidance. Within few days, I completed the task successfully and gained a new skill. HR sees confidence and learning mindset. अब यहाँ एक important बात समझो. Companies grow fast, rules change, technologies change. If you cannot adapt, you cannot grow. ठीक है. तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन. अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. That is a situation involving external pressure. Okay, तो चलो देखते हैं. The fourth question is how would you handle a difficult client? This question is very common in service-based companies. HR wants to see can you stay calm under emotional pressure? Imagine a client is angry. Okay, maybe delivery is delayed, maybe expectation were unclear. तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करोगे या आप अपनी कंपनी को ब्लेम करोगे या इमोशनली रिएक्ट करोगे? तो आप यहाँ पे क्या करोगे? तो मैं आपको एक करेक्ट अप्रोच बता रही हूँ, आपको ये सब ना करके और क्या करना चाहिए. फर्स्टली, आपको स्टे काम, आपको काम रहना है. सेकेंड, लिसन केयरफुली सुनो कि क्यों क्लाइंट एंग्री है, क्या इशू है, उसको केयरफुली सुनो. थर्ड, एक्नॉलेज द कंसर्न. एंड जो फोर्थ है, प्रोवाइड अ सॉल्यूशन और टाइमलाइन. उन्हें आप एक डेडलाइन बता दो कि इस डेडलाइन के अंदर आपका काम हो जाएगा. ठीक है. तो आप एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रही हूँ, आप ये बोल सकते हो. ओके. In my previous project, a client was unhappy about delayed delivery. Instead of defending myself, I listened carefully. I explained the reason transparently and provided a revised timeline. I also offered an additional support call to rebuild trust. The client appreciated the clarity and continued working with us. HR looks for composure here. Remember, प्रोफेशनल मेच्योरिटी इज शोन इन टफ कन्वर्जेशन. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है. तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन कि आपको क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में. होप आपको समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव टू अकाउंटेबिलिटी. दैट इज़ योर फिफ्थ क्वेश्चन. That is what would you do if you made a serious mistake? This question tests honesty. Everyone makes mistakes, but not everyone handles them correctly. Okay, तो आपका रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा? आप हाइड इट, क्या आप उसको हाइड करोगे या ब्लेम समवन एल्स, आप किसी और को ब्लेम करोगे या डिले इन्फॉर्मिंग या बाद में इन्फॉर्म करोगे. ठीक है. तो ये आपका रिएक्शन नहीं होना चाहिए. मैं आपको एक करेक्ट अप्रोच बता दे रही हूँ कि आपको कैसे करना. फर्स्ट, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो. सेकेंड, इन्फॉर्म इमीडिएटली. अगर कोई भी मिस्टेक होती है इमीडिएटली आप इन्फॉर्म करो. थर्ड, सजेस्ट करेक्टिव स्टेप्स. एंड जो आपका फोर्थ है, इंश्योर प्रिवेंशन नेक्स्ट टाइम. ठीक है. तो ये था एक करेक्ट अप्रोच आपका. अब मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रही हूँ, आप वो एग्जांपल बोल सकते हो या आपका जो भी प्रॉब्लम है आप उस प्रॉब्लम से चेंज करके ऐसा बोल सकते हो. आप बोल सकते हो, आई वंस सबमिटेड अ रिपोर्ट विथ इनकरेक्ट डेटा. एज सुन एज आई रियलाइज द मिस्टेक आई इन्फॉर्म माई सुपरवाइजर. आई करेक्टेड द रिपोर्ट इमीडिएटली एंड रिव्यूड माई चेकिंग प्रोसेस. आफ्टर दैट आई इम्प्लीमेंटेड अ पर्सनल चेकलिस्ट टू अवॉइड सिमिलर एरर्स. This answer shows accountability. HR prefers someone who admit mistakes over someone who hides them. HR किसको प्रेफर करता है कि आप अपना जो मिस्टेक्स है उसको कैसे एडमिट करते हो, नहीं कि आप कैसे उसको हाइड कर रहे हो. ठीक है. तो ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन. आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या क्या अप्रोच इसमें कैसे इसको बोलना है आपको जब भी इंटरव्यू होता है. ठीक है. तो ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन. नाउ हम देखते हैं कि हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है. Sixth question is how would you manage multiple projects at the same time? Time management is critical. HR wants to know, can you prioritize?
तो आप क्या करो, आप ये बोलोगे आई विल ट्राई माई बेस्ट, ये बिल्कुल भी नहीं बोलना है। आपको कैसे एक बेटर आंसर देना है। अगर आप ये बोलते हो आई विल ट्राई माई बेस्ट, ये एक रॉन्ग आंसर माना जाता है। आपको एक बेटर आंसर कैसे बोलना है। फर्स्ट, लिस्ट ऑल टास्क, पहले आपको जितने सारे टास्क हो उसको लिस्ट करना है। सेकेंड, प्रायोरिटाइज बाय अर्जेंसी एंड इम्पैक्ट, उसको प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा टास्क की डेडलाइन क्या है, कौन सा टास्क हमें जल्दी देना है, कौन से टास्क में हम टाइम दे सकते हैं, ठीक है, तो आपको प्रायोरिटाइज करना है। थर्ड, क्रिएट अ टाइम लाइन, एंड जो फोर्थ है, मॉनिटर प्रोग्रेस एंड एडजस्ट इफ नीडेड, ठीक है। तो ये होता है आपका करेक्ट अप्रोच कि आपको कैसे एचआर को रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। अब आपको मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ, आप वो भी बोल सकते हो। During my internship, I was handling 2 companies simultaneously. I created a structured timeline and broke tasks into daily goals. I also reviewed progress at the end of each day. As a result, both projects were completed successfully without delays. Simple system, clear thinking. ठीक है, तो आपको ऐसे बोलना है। अब तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अब एक फाइनल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है हमारा 7th क्वेश्चन। चलो देखते हैं। 7th question is how will you add value to our company? This is a vision question. HR wants clarity. They want to see, are you just looking for a salary or you are looking to contribute? क्या आप केवल सैलरी के लिए उनकी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो कि आप उनकी कंपनी कंट्रीब्यूट करोगे जिससे उनकी कंपनी ग्रो करे, ठीक है। तो वो ये जानना चाहता है। तो आपको एक करेक्ट स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ, आपको कैसे बोलना। फर्स्ट, सो यू अंडरस्टैंड कंपनी गोल्स, आपको उनको दिखाओ कि हाँ आप कंपनी के गोल्स को समझ रहे हो। सेकेंड, कनेक्ट योर स्किल्स, आप अपनी स्किल को उस जॉब से रिलेट करके बताओ कि मेरी स्किल इस जॉब से मैच हो रही है और मैं इसमें स्किल अपनी यूज़ करूँगा तो ऐसे आपकी कंपनी ग्रो कर सकती है। आपको ये चीज़ें बतानी। एंड थर्ड, एक्सप्लेन कंट्रीब्यूशन, आप उसमें क्या उनकी कंपनी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो आपको वो बतानी है। एंड फोर्थ, मेंशन कंटिन्यूअस लर्निंग, ठीक है, तो आपको ये बतानी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बोल दे रही हूँ जो आप बोल सकते हो। इफ़ सिलेक्टेड, आई विल फर्स्ट अंडरस्टैंड टीम एक्सपेक्टेशन एंड ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको यही बोलना है, आई विल फर्स्ट अंडरस्टैंड टीम एक्सपेक्टेशन एंड ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन माई एनालिटिकल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी, आई कैन कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, आई बिलीव इन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एंड कंटिन्यूअस लर्निंग, सो आई विल कीप अपग्रेडिंग माई स्किल्स टू अलाइन विद कंपनी ग्रोथ। HR wants to contribution mindset, okay, not overconfidence, not exaggeration, ठीक है। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। होप आपको आज के सारे 7 क्वेश्चन जो भी थे वो आपको समझ आ गए होंगे। So these were the 7 advanced and situational HR interview question. If you notice carefully, none of these questions test technical knowledge. They test thinking, they test maturity, and they test professionalism. Remember one simple rule: stay calm, stay logical, and stay honest. If you explain your thought process clearly, HR interviews become conversation, not integration. Okay, so this was the episode 3 of the interview preparation series. In the next episode we will go even deeper into tricky HR traps and salary negotiation psychology. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अगर कोई डाउट हो प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, कॉलेज के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।